رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو بندوں پر احسان کیا اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایمان والے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ہم سب کو دین جیسی نعمت دی۔ اللہ کی طرف سے دین نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ جیسا کہ ہر بندہ دنیا کے نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح اللہ کی جو نعمت ہے دین کی نعمت، اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ دنیا کی نعمت ایک دن ختم ہونے والی ہے، دین کی نعمت ہمیشہ ہمارا ساتھ رہے گی۔ دنیا میں رہ کر ایک سبحان اللہ بولیں گے تو آخرت میں جو اللہ کا نام اعمال کا جو پلٹا ہے وہ بھر جائے گا۔ جیسا کہ جنت کو جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح جنت کو جانے کے لیے اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے، جہنم سے بچنے کے لیے بھی اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں رہ کر ایک نیکی کریں گے، اللہ رب العزت آخرت میں اس کا 10 نیکی کا ثواب دیں گے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، دنیا کام کی جگہ، خبر آرام کی جگہ، جنت انعام کی جگہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندے سے، یہ ساری دنیا تیرے لیے، تو میرے لیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دنیا کے لیے ہو چکے۔ ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا، اسے جنگل میں ایک شیر کا بچہ ملا۔ اس نے وہ شیر کے بچے کو لا کر بکریوں کے ریوڑ میں ڈال دیا۔ چھوٹے بکریوں کے ساتھ رہتے ہوئے بڑا ہوا تو اپنے آپ کو محسوس کرنے لگا میں بھی بکری ہوں۔ اسی طرح ہمارا بھی حال ہے۔ ہم لوگ دنیا کے دوڑ کو، دنیا کو دیکھ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے آخرت کو بھول گئے ہیں۔ ہمارا مقصد جو ہے آخرت ہے۔ ہماری زندگی کی ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بڑی قیمتی ہے، سونے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں کے سونا، چاندی، زیورات، مال سب ختم ہو جائے گا، صرف ہمارے ساتھ ہمارا اعمال آئے گا۔ آج ہم لوگ اتنے بزی ہو گئے ہیں دنیا کے کام میں، دین کے لیے ہمیں وقت نہیں ہے۔ ایک جماعت آئی تھی، ان کی کارگزاری ہے، انہوں نے فرمایا گش میں گئے، گش کرتے ہوئے گئے ملاقات کے لیے کہ ابھی کہاں گئے سو؟ گش کو گئے سو، ملاقات کے واسطے گئے، دین کی بات کرنے کے واسطے۔ ایک گوشت کی دکان کے پاس گئے، جا کر بولے السلام علیکم بھائی، اللہ کے گھر سے اللہ کے بندے اللہ کی بات لے کر آئی ہیں۔ تو گوشت کے دکان والا بولیا بھائی حضرت تم نا کام نہیں ہے منجھے ٹائم نہیں ہے کیا بولا سو؟ تم نا دوسرا کام نہیں ہے منجھے ٹائم نہیں ہے۔ تو انہوں جماعت کے ساتھی مختصر بول کر اللہ رسول کی بات ہو رہی، دیکھو بھی آ جاؤ کر کو بول کر آگے بڑھ گئے۔ تو سامنے ایسا ہی 2 پیوٹ چا کا دکان تھا، سامنے آئے،
बेट लगो थे, दो जनों में बात बढ़ी। बात बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, 1-2-3 लाजे में वो पीवट ठाकर उसे चाकू चुबा दिया, आउट। तो पुलिस वाले सब आए, तब पूछे भाई कौन देखे ये इन्हें चुबाया सो, उन्हें चुबा को भागा। तो चाय के होटल वाला एक जना बोलिया वो सामने गोश्त के दुकान वाले ही ना, उन्होंने देखे तो उसे भी पकड़ ले चले गए। बाद में 5 साल कोर्ट में फिरिया उन्हें। बाद बोलिया बड़ी गलती काम करया मैं, जमात वाला है तो बोलिया मैं तुम ना काम नहीं है, मुझे टाइम नहीं है घर को। उनकी बात सुन ल को मैं मस्जिद को चल जाता तो इतना बड़ा काम मेरे से नहीं होता था। दिन को ठुकराया सुने, वक्त नहीं है क्या, अल्लाह कैसा फिराए। हमारा दीन क्या सिखाता है, अच्छे अखलाक, अच्छे अमाल। आज इंसान बोलता भाई दुनिया भी करना दीन भी करना, दीन को खाली नमाज़ पढ़ना कुरान पढ़ना समझ गया आदमी। नमाज़ पढ़ना ये भी दीन का अरकान है, कुरान पढ़ना ये भी दीन का हिस्सा है, हज करना ज़कात देना ये सब दीन के हिस्से हैं। हमारा दीन हमारा इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम ये सिखाता है कि खुदा ताला एक है, बंदगी के लायक वही है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और रसूल हैं, और कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। इस्लाम सच्चा दीन है, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है। बचपन में पढ़े नहीं, हमारे अंदर अच्छे अखलाक को भी पैदा करना, किसी को तकलीफ़ देने से बचना ये भी दीन है, बिस्मिल्लाह बोलकर खाना ये भी दीन है। रास्ते में जा रहे कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ है उसे हटा डाले ये भी दीन है, ये सब दीन है। हमारे 24 घंटे की ज़िंदगी दीन है। अच्छे अखलाक भी पैदा करना है, अच्छे आमाल भी बनाना है। आज इंसान के पास वक्त नहीं है भी, जो अल्लाह ने हमें वक्त दिया, जो अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी, उसके लिए हमें अल्लाह के लिए 5 मिनट 10 मिनट नमाज को जाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। किसी का इंतकाल होगा, एक दोस्त गए ख़बरस्तान को, जनाजे की नमाज़ पढ़ेंगे घर को जाको। अब एक दोस्त को फ़ोन करे भाई फ़लाना हमारा एक दोस्त का इंतकाल होगा ना, बा जल्दी आ घर को। आया उन्हें भी 2 जने मिलकर जनाजे की नमाज़ को पढ़ लिए। उसके बाद एक दोस्त बोला भाई मैं जाना ज़रा काम में नहीं आओ भी, जाको दफनाए तक साथ में रहेंगे। नहीं भी मैं ये वक्त काट को आया सो बड़ा गनीमत है, मुझे टाइम कुछ नहीं है कर को बोल को चलेगा। उन्हें दोपहर में गया, शाम को उसका जनाजा आया। क्या भी सामने गया, रोड पर होने एक्सीडेंट होगा, स्पॉट आउट। वक्त नहीं है क्या सो, अब वक्त मिलगा कहाँ खबर में, हर हमेशा के वास्ते खबर में चलेगा। वक्त किसी इंसान का बोल को नहीं आता। किसी का इंतकाल होगा, सब जने घर में रो रही, तो एक फरिश्ता चौखट के पास खड़े होकर कहता है भाई कई को रो रही, इसकी रोज़ी ख़त्म हो गई, इसकी ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो गया, इसीलिए हम लोगों ने इसकी रूह को क़ब्ज़ किया। क्या बोलती, एक दिन तुम्हारा भी वक्त आता है और भी हमें आना है, क़यामत तक हमें आती, तुम ना सबको भी लेकर जाती गति। इसलिए हमें फ़िक्र की ज़रूरी है, फ़िक्र करना तो ज़रूरी है। दुनिया की ज़िंदगी माल से चलती है, आखिरत की ज़िंदगी आमाल से चलती है। उसके वास्ते देखो ये दावत का काम चल रहा है, पूरे आतीन जावत के साथ यहाँ आते आकर मेहनत करती हैं। अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह करने वाले हैं। हर ईमान वाला कलीमा तो पढ़ को है ना, कलीमे का मतलब क्या है सो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। हम ना पालने वाले कौन, अल्लाह। सूरज को लाने वाले, चाँद को लाने वाले, दिन को लाने वाले, रात को लाने वाले, सबको मालूम ये सब कौन कर रही सो भी, निज़ाम कौन चला रही सो भी, अल्लाह चला रही सो। तुम्हारे घर को कौन भी चला रही सो, मैं ही चला रहा हूँ सो, मेरा दुकान चला रहा सो। अजोश ना हमारा नियत, हमें करे तो छोटा सो, वो निकालना है, अल्लाह करे तो होता सो। एक सहाबी के घर में फाका था, घर को आए खाने के वास्ते क्या भी नहीं है,
बीवी बोली भाई क्या खाने के वास्ते क्या भी नहीं है। शौहर बोले इंतज़ाम हो जाता इंशाल्लाह। गए सीधा मस्जिद को, जाकर वज़ू करे, 2 रकात नमाज़ पढ़े, अल्लाह से दुआ करे। घर को आए, देखे क्या भाई इंतज़ाम हुआ, नहीं हुआ। फिर भी गए, वज़ू करे, फिर भी नमाज़ पढ़े, दुआ करे, फिर भी घर को आए, आकर पूछे भाई क्या तभी इंतज़ाम हुआ क्या, नहीं हुआ। और फिर भी गए, बस सोचे दिल में क्या तभी मेरे में गलती रहेंगी, मैं वज़ू सही तरीके से नहीं करया, नमाज सही तरीके से पढ़ा कि नहीं की। फिर भी गए, वज़ू करे, फिर भी अल्लाह से मांगे, यकीन बना था उनका। घर को आकर देखे तो चक्की में से आटा आना शुरू होगा। उनकी बीवी बोली सब बर्तने भर दिए, देखे तो और भी चक्की में से आटा अलग कुछ है। देखेंगे भी ठाक, देखो क्या कर ठाक देखे तो आटा आना बंद होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बोले ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तुम्हें चक्की से जो चक्की का पार्ट जो ऊपर नहीं ठाते तो क़यामत तक वो आटा आता। यकीन किसकी तरफ बना था? अल्लाह की तरफ। वैसा यकीन हमारे अंदर बनाना है। आज आदमी बोलता भाई ज़माना बदल गया, भाई ज़माना नहीं बदला। वो ज़माना, वो दिन, वो रात, वो चल्ला हमारे हिंसो जो सहाबा की मदद करे, जो अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजे, वो चल्ला हिंसो। आज हमारे में कमी है सो हम लोग बदल गए साहब, हम लोग सब दुनिया की तरफ हो गए। अल्लाह की मदद कहाँ से आती है? इसके वास्ते देखो अल्लाह के रास्ते में जाना, बार बार बड़ों की भी बात को सुनना, गेस्टों में जाना, मोहल्ले में वारम में एक मरतबा गेस्ट होता है, अल्लाह रसूल की बात होती है, एक दूसरे आशने यार दोस्त मिले तो दुनिया का पूछते हैं भाई कैसा है कारोबार, कैसा है घर बार। कोई दीन का नहीं पूछते, दीन का पूछने वाले बहुत कम लोग हैं। दुनिया का सुन सुन को, दुनिया का बोल बोल को, दुनिया का 10 रुपये का भी नुकसान होने हमारे अंदर दर्द होता है। कभी हमें एक वक्त की नमाज़ छोड़े, कभी हमारे अंदर एहसास हुआ है, दर्द हुआ है? नहीं हुआ। दुनिया के ऊपर मेहनत हो रही है तो दुनिया की कीमत मालूम, दीन के ऊपर मेहनत नहीं हो रही है तो दीन की कीमत नहीं मालूम। इसलिए हमें जाना, अल्लाह के रास्ते में जाना, 3 दिन 40 दिन 4 महीने जाना, हमारे मकसद को पहचानना है। बच्चा स्कूल को जाता, भाई बैग कहाँ लग जाता, पीछे लग जाता। कुरान ने ले लग गया तो मदरसे को कहाँ लग जाता, सामने रख लग जाता है, हाथों में बंद कर। इसी तरह किसी का इंतकाल होगा, वो बैग जो है यहाँ की पड़ी पीछे से चल जाते। जो कुरान उन्हें पढ़ को रहता, जो आमाल कर को रहता, वो क्या इसके साथ खबर में आता है। नेक आमाल नेक सूरत में बनकर आता है। गुनाह बदकार जो गुनाह करे बदसूरत से बनकर आता हमारे सामने। इसके लिए फ़िक्र करना है, अल्लाह के रास्ते में भी निकलना है, दीन सीखना है, ख़ुद भी सीखना है, हमारे बच्चों को भी सिखाना है, अल्लाह के रास्ते में भेजना है, मस्तूरात में लेकर बीवी को निकलना है। दीन का सुनेंगे तो आखिरत का जो है हमारे अंदर फ़िक्र पैदा होगी। मौत के बाद जो आने वाली ज़िंदगी है उसके बारे में हमारे अंदर फ़िक्र होगी। हम लोग क्या करते हैं, बीवी बच्चों की, रोटी मकान दुकान की तो फ़िक्र करते हैं, आज फ़िक्र नहीं करते तो दीन की नहीं करते। जैसा रोटी का, मकान का, दुकान का फ़िक्र है, इसी तरह जो है बच्चों की, बीवी की, दीन की भी फ़िक्र करना ज़रूरी है।